Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to talk about the conservation of energy, but उसका जो law है वो हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं, right? So we will be applying that law and test that law in some condition. For example, simple pendulum के केस में, simple pendulum के केस में कब कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, किस पोजीशन पर कौन सी एनर्जी सिंपल पेंडुलम में होती है, ये हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये भी चेक करेंगे कि क्या सचमुच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन वहाँ वैलिड है या नहीं, राइट। और उसके अलावा भी एक फॉलिंग बॉडी पर किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन होता है, दैट वी विल बी गोइंग टू सी। जो एनर्जी है वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में कन्वर्ट होते रहती है, राइट। सो कब कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कब कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड देन वी विल बी लुकिंग अप टू सम क्वेश्चंस ऑल्सो। सो इन इस लेक्चर में हम लोग मेनली एग्जाम्पल्स कर रहे हैं एंड क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट वुड बी ऑल इन दिस लेक्चर। So you all know that this topic, this work energy power is important topic जब हम 9th क्लास के शेड्यूल की बात करते हैं, even for the NTSC and NSCJS. So you should definitely study this topic which is very much, you know, इतना hard नहीं है, but it is important, right? So you can get some in-depth concepts and in-depth formula facts जो कि आपको पता होने चाहिए, so that you can do various type of questions, right? And that is the main important thing. और इसी के लिए that ये जो लेक्चर हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं, these lectures are totally important for your school examination as well as the Olympiad. So if you prepare for the school examination or if you are preparing for the Olympiads, you can watch these video lectures and you can study from these video lectures, right? If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write the code TTB009 in the search box of the Telegram app. If you do so, you are going to get the 9 channel for the class 9, right? TTB channel for the class 9. So you can join that channel. You can access all the DPPs and study material along with the notifications, right? So you need to join that, right? Now see, this is the team which is going to help you a lot, as we are putting so much efforts for you all, and we are trying to do our best so that we can provide you the quality content from Kota, so that you can study from that content and get all the you have goals set for yourself, right? That is the main thing जो कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, and we are doing it for you. So what you need to do is you need to study these video lectures, right? आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स इसमें से पढ़ने हैं. You need to make sure कि आप नोट्स प्रॉपर बनाएं, आप रिवीजन करें. If you do so, then I'm sure that you are going to crack the examination, right? You are going to get the good marks, a good rank. And ये सब तभी पॉसिबल होगा when you are giving your full while studying or while preparing for the examination, right? So these video lectures actually as an aid आपको help कर सकते हैं, right? तो basically जो content आपको चाहिए, अगर आप उसको study करते हैं तो it would be so much beneficial, right? तो आपकी एक journey में is a helping aid you can take these as from these video lectures. And we are providing these video lectures for science and mathematics, basically physics, chemistry, bio and maths and math. These subjects we are covering in. So basically science and maths olympiads के लिए बहुत useful है. So you should join these, you should watch these video lectures. Now in accordance to that, we have provided these video lectures free for everybody. But if you are the one who wants to join us or who wants to buy the packages from us, then you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. So if you go on our website, you are going to get the type of packages over there for every class. So there are 2 type of packages for every class. Number 1 is the full package, that is this one, and the test series. Full package includes all the necessary things you need to crack any examination. That is the study material, which is a focused one, right? Comprehensive study material. Then video classes, either the live or the recorded ones, right? You will be getting the homework submission feature where you need to do the homework, you need to do the hard work, and then you are going to submit it to us, right? And then the periodic test papers and the bi-weekly quizzes. This is the testing part actually. So basically ये सभी चीज़ें मिलाकर you can get कि भाई ये जो full package है ये आपको consistent एक तरीके से study provide करता है कि आप हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे. You are going to attempt the quiz, you are going to attempt the periodic test papers, you are doing the homework, you are watching the videos, right? तो ये सब एक पूरा process है जो year long process है. You can join that. If you want to get only the testing part, then you can join the test series. So you will be getting the bi-weekly quizzes, periodic test papers, and
the recorded or the live classes, right? So these are the main thing you need to know about the packages from the talkingtextbooks.in. And if you are interested in joining them, then you can write my code CYLive to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. It would be so good if you call us and you are going to resolve all your queries about these packages. So you can go ahead, you can call us and ask all the queries. Now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ठीक है, रिविजन बहुत जरूरी होता है. यू नीड टू डू इट अगैन एंड अगैन एंड वेरी फ्रीक्वेंटली. सो डेली रिविजन वुड बी अ मस्ट. सो इफ यू आर लाइक नॉट, अभी तक आपने अगर जैसे रिवीजन नहीं किया हो, अभी तक नहीं स्टार्ट किया हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, हाफ एन आवर डेली आप रिवाइज करने का शेड्यूल बना सकते हैं. सो 24 आवर में से हाफ एन आवर निकालना इज नॉट लाइक इम्पॉसिबल टास्क, राइट? इट इज लिटिल बिट हार्ड बट इट इज पॉसिबल. सो यू कैन डू दैट, राइट? आप लोग हाफ आवर बाहर निकाल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं उसमें, राइट? एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया बात है, बट यू नीड टू रिवाइज इट अगैन एंड अगैन ऑल्सो. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर स्टडिंग द 6th चैप्टर एंड आपने पहले के जो 5 चैप्टर्स पढ़े हैं उनको आप भूल गए, उनका फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पा रहे. दैट शुड नॉट बी हैपनिंग राइट हियर. बिकॉज देखो, वर्क एंड एनर्जी के अंदर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी के अंदर आप लोग कई बार, वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द मोशन, लाइक कोई बॉल को ऊपर फेंका, कोई बॉल नीचे फ्री फॉल कर रही है, राइट? तो ये जो पोजीशंस हैं, जब हम इनके में वेलोसिटीज, डिस्टेंस, टाइम की बात करते हैं, तो यू शुड बी नोइंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो आप उनको भूल नहीं सकते किसी भी कंडीशन में नहीं, क्योंकि अगर आप वो भूल गए तो आपका ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर भी फिर खराब हो जाएगा, राइट? तो आप इसको भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई आगे के जो भी चैप्टर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, राइट, उनको भूलना नहीं है, उनको यूज करना है इन द अपकमिंग चैप्टर्स. दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड इसमें कौन हेल्प करेगा? रिविजन. सो यू नीड टू रिविजन मोर एंड मोर. ठीक है, हाफ एन आवर तो कम से कम करो ही. जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं वो तो कम से कम हाफ एन आवर तो बिल्कुल स्टार्ट करें अभी से, राइट? एंड एवरी वीक ट्राई टू इंक्रीज दैट 15 मिनट्स इनटू दैट रिविजन पार्ट. ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर 5. वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन होता है और ड्यूरिंग दिस एनर्जी कंजर्वेशन कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, बेसिकली वी आर गोइंग टू सी दैट. लेकिन हम लोग मेन बात करेंगे किसकी? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की, राइट? तो मतलब हम लोग ये देखेंगे, वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट? काइनेटिक एंड द पोटेंशियल. हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो हम देखेंगे कब पोटेंशियल काइनेटिक में बदलती है, काइनेटिक पोटेंशियल में बदलती है, कब ये दोनों हाफ हाफ रहती हैं, कब एक 0 एक सबसे ज़्यादा रहती है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी. हम सिर्फ इंडिविजुअल पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होता है कि जब एनर्जी कंजर्वेशन होता है तो वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है तो वो पूरे जर्नी के दौरान कांस्टेंट रहेगी. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. काइनेटिक एनर्जी पूरे जर्नी के दौरान कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं होता. द टोटल सम ऑफ द एनर्जी विल बी द कांस्टेंट. ये यहाँ पर हम लोगों को मेन समझना है. एक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? एनर्जी, टोटल एनर्जी वुड बी द कांस्टेंट. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जरूर जो है चेंज हो सकती है, बट इट विल बी कांस्टेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इट विल बी कांस्टेंट, राइट? दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमें ये बताता है कि कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. वो सिर्फ वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, राइट? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इससे आपको ये समझना है कि इतना जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप की एनर्जी को कांस्टेंट मानो. ठीक है, आपको ये समझना है कि इफ वी टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी, देन द टोटल एनर्जी वुड बी द कंजर्व्ड. ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी. दैट इज द मेन थिंग. सो लेट्स लुक अप टू द एनर्जी. हम लोग एनर्जी के बारे में देखते हैं. यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी का देख रहे हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में टोटली कांस्टेंट रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या लिया? एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे m मास की बॉडी है, राइट? वो पहले A पोजीशन पर थी, रेस्ट पर थी. ठीक है, A पोजीशन पर थी, रेस्ट पर थी, और हमने फिर उसको छोड़ दिया. जैसे ही हमने उसको छोड़ा वो नीचे आएगी सो, एंड वो देन जमीन पर आ जाएगी, राइट? ग्राउंड पर आ जाएगी. ड्यूरिंग दैट जर्नी फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट टू द वेरी लोवेस्ट पॉइंट, इन पॉइंट्स पर वी आर गोइंग टू
check out that the energy is conserved or same or not. ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी पे, राइट, एंड और इसके अलावा जो भी एनर्जी है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई एम टेलिंग यू द सिचुएशन हियर कि भाई यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया है, ये अज्यूम किया है दैट देयर इज अ मास m बॉडी. ठीक है, मास m की बॉडी है हमारे पास एंड दैट बॉडी इज एट अ हाइट h. ठीक है, धरती से यानी कि ग्राउंड से वो h हाइट पर है एंड एट a पोजीशन. ठीक है, तो देयर आर 3 पोजीशन. हम इस जर्नी में 3 पोजीशन कंसीडर करेंगे. पहली पोजीशन A, सेकेंड पोजीशन B एंड थर्ड पोजीशन C. अब ये जो A है दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन, राइट, धरती से ये सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे है. दिस इज द हाइट h, तो ये पोजीशन h हाइट पर है. फिर यहाँ से बॉडी ये जो है रेस्ट पर है, यहाँ से बॉडी गिरना शुरू होती है, फ्रीली फॉलिंग कर रही है. ठीक है, फ्रीली फॉलिंग का मतलब एक ही फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब ये फॉल करते करते B पोजीशन तक आती है, यानी कि ये A पोजीशन से x डिस्टेंस कवर अप करते करते B पोजीशन तक आती है. तो जब ये B पोजीशन पर आएगी क्या तब भी इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये हम लोग चेकआउट करेंगे. एंड देन व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पर आ जाएगी, C पोजीशन पर आएगी, क्या तभी भी इसकी जो कंडीशन है, जो वेलोसिटीज वगैरह हैं या फिर जो इसकी एनर्जीज हैं, नॉट द वेलोसिटी दैट वुड बी चेंजिंग एवरी सिंगल टाइम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज, मैकेनिकल एनर्जी स्पेसिफिकली, कि ये कंजर्व है या नहीं. ठीक है, तो एट दीज 3 पोजीशंस वी आर गोइंग टू टेस्ट आउट कि भाई इन तीनों ही पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट. ये चीज हमें पता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट और चेकआउट कि क्या सचमुच में ऐसा होता है या नहीं, यूजिंग द मैथमेटिकल पार्ट. सो मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू सी कि भाई ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं, या फिर होता है या नहीं, लाइक दैट. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये माना है कि भाई A पोजीशन पर, ठीक है, A पोजीशन पर जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, 0. ठीक है, B पोजीशन तक आते आते डेफिनेट सी बात है इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, राइट, 0 से अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो B पोजीशन पर आते आते मान लो कि उसकी वेलोसिटी अब हो गई है V. ठीक है, एंड अब ये जब और नीचे जाएगा, C पोजीशन तक आएगा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो वहां पर इसके पास कितना वेलोसिटी होगा, लेट इट बी V डैश. ठीक है, सो V डैश हमने मान लिया है देयर आर 3 वेलोसिटीज, इनिशियल इज 0, देन एट B पोजीशन देयर इज V एंड एट C पोजीशन देयर इज V डैश. ठीक है, तो ये 3 वेलोसिटीज हमने चेकआउट की है, इमेजिन कर लिया या मान लिया है. ऑलराइट, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम A पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है, एट पॉइंट A, अगर हम A पॉइंट पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है जिसे मैं T से लिख रही हूँ, ठीक है, दैट शुड बी हाउ मच, क्योंकि देखो यहाँ पर जो A पोजीशन है इस जगह पर बॉडी रेस्ट पर है. ठीक है, रेस्ट पर है दैट मीन्स मूव नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है, सो नो वेलोसिटी, नो वेलोसिटी मीन्स नो काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात करूँ जो कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये यहाँ पर कितना आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 0. वाई 0, बिकॉज यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है. ठीक है, प्लस बचा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द हाइट, राइट, और अभी ये जमीन से A पोजीशन पर कितने हाइट पर है, h हाइट पर, तो इट वुड बी मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट h. सो टोटल एनर्जी जो कि A पोजीशन पर है एक्चुअली दैट इज हाउ मच, mgh. सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट A. अब हमें ये मैच करना है या फिर चेकआउट करना है कि B पोजीशन पर भी इसकी जो एनर्जी है वो mgh ही होनी चाहिए और C पोजीशन पर भी इसकी एनर्जी mgh ही होनी चाहिए, टोटल एनर्जी की बात करें तो. ठीक है, ये चीज हमें चेकआउट करनी है. तो यहाँ पे आप फटाफट से A पॉइंट के लिए लिख लीजिए, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट B एंड C. ऑलराइट, तो देखो इसे ना अलग से मेंशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लेट इट बी टोटल एनर्जी है तो हम इसे TA लिख देते हैं. ठीक है, टोटल एनर्जी.
टोटल एनर्जी समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे TA लिख सकते हैं, एनीबडी, कोई और चाहे तो इसे E भी लिख सकता है, E फॉर एनर्जी, ठीक है। कोई इसे TE भी लिख सकता है अगर आप चाहें, जैसे हम काइनेटिक और पोटेंशियल को लिख रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑन यू, बट आई एम राइटिंग हियर TA, एंड मैं पहले ही मेंशन कर दूं, TA इज द टोटल एनर्जी एट पोजीशन A, ठीक है। तो ये हमने TA मान दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं B पोजीशन पे। लेट्स सी B पोजीशन पर भी क्या हमें टोटल एनर्जी mgh मिलती है या नहीं, ठीक है। सो आई एम चेंजिंग द स्लाइड हियर। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं B पोजीशन के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एट पोजीशन B। ठीक है, तो देखिए B पोजीशन तक क्या हो चुका है, यहां पर हम वापस से लिख देते हैं, A पे 0 वेलोसिटी थी, B पर V वेलोसिटी थी, C पर V डैश वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो A से लेके अब बॉडी आ चुकी है B पोजीशन तक, A से लेके B पोजीशन तक वो मूव करते हुए आई है, दैट मीन्स वहां पर कोई ना कोई वेलोसिटी है, दैट इज V, हम लोगों ने माना है। एंड यहां पर अब उसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, अब वो डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि पहले वो जितनी हाइट पे थी अब वहां से गिर कर वो जमीन के और पास आ गई है। तो पहले जितनी हाइट थी h, अब कितनी रह गई है, x डिस्टेंस कवर अप करने पर उसके पास कितनी हाइट रह गई है, h माइनस x, ये हाइट रह गई है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो कितनी होनी चाहिए, हाफ mv², क्योंकि एट पॉइंट B द वेलोसिटी इज v, है ना। तो इस वेलोसिटी के बेसिस पे हम काइनेटिक एनर्जी तो लिख देंगे हाफ mv², राइट। इसी तरीके से इफ आई वांट टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए mg, और जो हाइट है दैट मस्ट बी फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो यहां पर B पोजीशन जो है वो ग्राउंड से कितने ऊपर है, दैट इज h माइनस x, मतलब टोटल हाइट माइनस जितना डिस्टेंस B तक आने में बॉडी ने कवर अप किया। तो बॉडी ने A से लेकर B तक आने में x डिस्टेंस कवर अप किया, तो टोटल हाइट में से x अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जमीन से B की हाइट मिल जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा h माइनस x, ठीक है। टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो टोटल एनर्जी जो मैं TB लिख रही हूं एट B पॉइंट, तो इट वुड बी हाफ mv² प्लस mg h माइनस x। अब मुझे ये चेकआउट करना है कि ये पूरी वैल्यू जो मुझे मिल रही है TB की वो mgh के बराबर है या नहीं, ठीक है। ये चीज हमें चेकआउट करनी है। सो वी विल बी यूजिंग, ये वेलोसिटी पता करने के लिए, लेट्स चेकआउट कि ये वेलोसिटी पता करने के लिए क्या हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इफ आई वांट टू नो द वेलोसिटी हियर, इसका वैल्यू कितना होगा अगर मैं ये चेकआउट करना चाहती हूँ, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस AT, बट यहाँ पर टाइमिंग का कोई यहाँ पे यूज नहीं है या फिर कोई वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वी कैन नॉट यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² है, वो भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसमें भी टाइम है। बची इकलौती हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इफ आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ दिस v इन दिस जर्नी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो देखिए v² इज द फाइनल वेलोसिटी, तो हमने v² लिख दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है u², दैट इज द इनिशियल वन, ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज स्टार्टिंग का जर्नी तो a से किया था, a पर यहाँ पर u इक्वल्स टू 0 है। सो a से लेकर b तक आने की जो जर्नी है वहां पर 0 से वेलोसिटी अब v हो चुकी है। सो फाइनल v वेलोसिटी, इनिशियल 0 वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस का प्लस, ठीक है, इट वुड बी 2g, और आना चाहिए हाइट, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर अप किया ड्यूरिंग दैट जर्नी। सो A से B तक आने में x डिस्टेंस कवर अप किया, सो आई वुड बी राइटिंग हियर 2gx। समझ में आया। यहां पर ये वाला जो u² है ये तो बन गया 0, तो हमारे पास जो v² की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2gx। अब ये जो वैल्यू है 2gx, इसको हम पुट ऑन कर देंगे टोटल एनर्जी में, ठीक है। तो लेट्स डू इट एंड लेट्स सी कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें mgh मिलती है या नहीं।
हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे आई एम पुटिंग 2gx, 2gx, ठीक है ना। और ये जो है हटाना है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पर mgh माइनस एक्स है, इसमें mgh माइनस एक्स, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी, एक मिल जाएगी mgh और एक मिल जाएगी माइनस का mgx, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाफ के 2 से ये 2 कट जाएगा, वी गॉट mgx, ठीक है, ये पॉजिटिव mgx है और यहाँ पर हमें नेगेटिव mgx मिल रहा है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इकलौता हमारे पास कौन, mgh। सो हमें ये पता चला कि बी पोजीशन पे भी यही हो रहा है, दैट टोटल एनर्जी इज mgh। हालांकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें वापस से कितनी मिल रही है, mgh मिल रही है, ठीक है। तो अभी आप बी पोजीशन के लिए लिख लीजिए, फिर हम सी पोजीशन पे डिस्कस करेंगे व्हाट इट वुड बी। ऑलराइट, अब हम सी पोजीशन पर चेकआउट करते हैं, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, सो लेट्स डू इट। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट इट बी जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, अब हम सी पोजीशन पे चेकआउट करते हैं, सी पोजीशन पर भी क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट आती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर u इक्वल्स टू 0 है ए पोजीशन पे, b है v पोजीशन, v वेलोसिटी एट b एंड v डैश एट c। तो अब हम देख रहे हैं एट पॉइंट c, ठीक है, एट पॉइंट सी वी आर गोइंग टू सी दैट अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी इज v डैश, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v डैश स्क्वायर, सो इट वुड बी हाफ m v डैश का स्क्वायर, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 0। व्हाई सो, बिकॉज ग्राउंड से अब इसका जो हाइट है वो 0 है, क्योंकि अब तो ग्राउंड पे ही आ चुकी है ना बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड से जो हाइट जा रही है दैट इज 0, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लेंगे 0। सो टोटल एनर्जी यानी कि टी सी एट पॉइंट सी वुड बी हाउ मच, हाफ m v डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0, तो इट वुड बी, अब वो तो 0 ही हो जाएगा। सो हाफ m v डैश स्क्वायर, ये अब हमारी टोटल एनर्जी है सी पोजीशन पे, ठीक है। अब हमें ये चेकआउट करना है कि क्या ये mgh के बराबर है या नहीं, तो हम लोग अगेन v डैश स्क्वायर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। v डैश स्क्वायर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करने के लिए हम वापस से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v डैश स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी, अगेन u स्क्वायर इज द इनिशियल वन। क्यों, क्योंकि देखो अभी हम B से C तक की जर्नी मेजर नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम क्या करें, A से C तक की जर्नी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इट वुड बी इजी फॉर अस टू डू, क्योंकि A पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसीलिए A से लेके C तक की टोटल जर्नी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो दैट वुड बी u स्क्वायर प्लस 2g, और यहाँ पे होता है हाइट, तो हाइट वुड बी h, तो इट वुड बी h, ठीक है। तो अब देखो ये वाला u स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, तो v डैश स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2gh। अब ये जो 2gh आपको वैल्यू मिल रही है, इस 2gh को हम tc में पुट ऑन कर देंगे। सो टोटल एनर्जी एट c वुड बी हाफ m, ठीक है, v डैश की जगह पर, v डैश स्क्वायर की जगह पर हम लिख रहे हैं 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट, यू आर गोइंग टू गेट mgh,
राइट. अगेन एट सी यू आर गोइंग टू गेट द mgh. दैट मीन्स कि जो एनर्जी उसके पास पहले थी, मतलब फर्स्ट पॉइंट पर थी, ए पॉइंट पर उसके पास जो एनर्जी थी वो ही एनर्जी अभी भी उसके पास है. हालांकि वो जमीन तक पहुंच चुकी है बॉडी, फिर भी उसके पास उतनी ही एनर्जी है. सो दिस मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली have a constant value throughout the journey whenever a body is free falling. ठीक है. But the thing is कि यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट नहीं कह सकते. ठीक है. तो सबसे मेन चीज आपको ये समझनी है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, दे आर चेंजिंग. ठीक है. तो यहां पर हम लोग देखेंगे एट वेरियस पोजीशन उनका चेंज क्या हुआ. बट बिफोर दैट नोट दिस डाउन एट पॉइंट सी. तो पॉइंट सी पर भी हमें mgh एनर्जी ही मिलती है टोटल. ऑलराइट. चलो अभी हम आगे देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी कर्व. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा कि भाई हमारी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी is constant for a freely falling body. ठीक है. हालांकि अलग अलग पोजीशन पे यू आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी. जैसे अगर हम ए पर बात करें तो ए पर देखो, इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, ए पोजीशन पर यू आर गोइंग टू गेट कि जितनी भी एनर्जी है इसके पास टोटल एनर्जी है. ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू द पोजीशन 1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बता रही है टोटल एनर्जी. ठीक है. तो आप देखिए ए पॉइंट से पूरी जो ए पॉइंट पर एक्चुअली जो टोटल एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है. तो अगर हम देखें कि ए के पास ए पोजीशन पर वी कैन से जितना भी है वो सारी की सारी कैसी पोजीशन है, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो वी कैन से होल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है. अब देखो जैसे जैसे ए से पोजीशन चेंज हो रही है वो बी की तरफ जा रही है बॉडी, जैसे जैसे वो पोजीशन चेंज कर रही है वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी 0 थी ए पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी ए पोजीशन पे. अब क्या हो रहा है, धीरे 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 जैसे जैसे पोजीशन कम होते जा रही है, धरती की तरफ बॉडी जा रही है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है. ठीक है. फिर एक पॉइंट ऐसा आता है मिडिल में जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर. ठीक है. फिर आगे देखो जैसे जैसे सी तक पहुंचेंगे पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 बिल्कुल 0 और सी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम. ठीक है. तो मतलब जितनी भी एनर्जी है वो सब की सब, जो टोटल एनर्जी है वो सब की सब वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम सी पोजीशन के लिए लिखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. इधर यू कैन राइट हियर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और द होल काइनेटिक एनर्जी. बट अगर हम बी पोजीशन की बात करें तो बी पोजीशन पे पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी और पार्शियल काइनेटिक एनर्जी होती है. राइट. तो यहाँ पे होल नहीं मान सकते, तो वी कैन से पार्शियल काइनेटिक एनर्जी एंड पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी. मतलब थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर बी पोजीशन पर है. ठीक है. बट सी पोजीशन पे बिल्कुल ग्राउंड पर जितनी भी एनर्जी है वो सब की सब काइनेटिक एनर्जी में है और हाइट पर एट एच हाइट जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सब की सब पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है. सो यहाँ पर आप इस तरीके का कर्व देख सकते हैं और इस कर्व से आपको पता चलेगा कि भाई पूरे जर्नी के दौरान जो टोटल एनर्जी है वो तो पूरी की पूरी कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी. बॉडी ए पोजीशन से सी पोजीशन तक चली गई बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. हालांकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जा रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जा रही है,
but total energy is constant here, and that is what I am going to tell you, that this is known as the energy conservation. Total energy same, that is known as the energy conservation. ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए, thus in an isolated system, अगर हम isolated system की बात करें, मतलब और कोई इंटरफेयर नहीं करता है उसके साथ, where only conservative forces cause energy changes, सिर्फ conservative forces, and this gravitational force is a conservative force, right? तो जितने, अगर हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सिर्फ वही बॉडी पे लगते हैं और बॉडी की एनर्जी को वही फोर्सेस अगर चेंज कर रहे हैं, उस दौरान वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज, बट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज विच इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट चेंज. ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, एंड ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ये कभी भी बॉडी की होल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं लाते, वो लेकर आते हैं सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, राइट? उसके अलावा वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाते. ठीक है, तो अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए. ऑलराइट, अब देखिए इस चीज का पूरा कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं. व्हाट वी कैन से इज वी कैन देयरफॉर इक्वेट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट वन इंस्टेंट टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अनदर इंस्टेंट विदाउट कंसीडरिंग द इंटरमीडिएट स्टेट्स. मतलब हम लोग क्या कर सकते, किसी भी एक यू कैन से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस ली थी. ठीक है, ए बी सी हमने 3 पोजीशंस ली थी. तो ये जो 3 पोजीशंस हैं, मतलब हम ए इंस्टेंट की बात करें, बी पोजीशन यानी उस मोमेंट की बात करें जब जो बॉडी है वो बी पोजीशन पे है, और उस मोमेंट की बात करें जब बॉडी सी पोजीशन पे है, राइट? तो इन सभी इंस्टेंट पे यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ द एनर्जीज काइनेटिक और पोटेंशियल, इन सबको इक्वेट कर सकते हैं हम. अगर हम इंटरमीडिएट स्टेट्स की बात ना करें तो, मतलब उसमें जैसे जैसे वो धीरे धीरे नीचे आ रही, तो वी नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूसली, बट हम किसी 2 मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, देन वी कैन इक्वेट इट, राइट? तो मतलब सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट वन इंस्टेंट कैन बी इक्वेटेड और इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अनदर इंस्टेंट, राइट? तो आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड के बाद जो पोजीशन है वहां पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल कैन बी इक्वेट टू दी सेकेंड, यू कैन से 2 सेकेंड्स के बाद उसका जो पोजीशन है एट दैट मोमेंट. ठीक है, तो आप अलग अलग मोमेंट्स पे दोनों का काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है आप उसे इक्वेट कर सकते हो. द रीजन इज कि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, राइट? बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट स्टेप्स और दी बीच में जो उसका इंटरमीडिएट स्टेप्स आती हैं, राइट? आप ऐसे बात नहीं कर सकते, दैट वुड बी कंटिन्यूसली, राइट? ये बिल्कुल ऐसे स्टेप्स में नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, दिस लॉ हैज बीन फाउंड टू बी वैलिड इन एवरी सिचुएशन. ठीक है, ये लॉ हर जगह वैलिड है. अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा अभी तक कोई सिचुएशन नहीं आई है जहां पर ये लॉ वैलिड नहीं होता. सो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज टोटली वैलिड. अभी तक इसका कोई वायलेशन अभी तक नहीं आया है. ठीक है, सो लेट्स गेट अहेड. और अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो बेसिकली सिंपल पेंडुलम में भी यही होता है, बट इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल वेयर द मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम बात करेंगे. हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से सिंपल पेंडुलम के केस में भी यही हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो लेट मी डू दी थिंग्स. ठीक है, अब लोग यहाँ पर देखते हैं. पहली चीज देखो, यहां पर जो आपको फिगर नजर आ रहा है इसमें ओ ए, यू कैन से दिस ओ ए इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट स्टेट, मीन स्टेट या फिर मीन पोजीशन. ठीक है, ये होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो पेंडुलम के लिए वर्टिकली अगर स्ट्रेट पोजीशन है तो दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम, राइट? ये तो हमें पता है. सो देखो ओ ए यहां पर जो बोला गया है, इस जगह पर ओ ए पॉइंट पर बॉडी जो है वो रेस्ट पर है.
दैट मीन्स दिस इज एट द रेस्ट, एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, नथिंग इज डूइंग ऑन। तो देखो OA इज द नॉर्मल पोजिशन ऑफ रेस्ट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसे डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। ए पोजीशन से हम इसे बी पोजीशन तक लेकर जाएंगे, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेकर जाएंगे। दैट मीन्स वी आर डूइंग सम वर्क बिकॉज वी आर मेकिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जब ए से बी तक सिंपल पेंडुलम के बॉब को लेकर जाएंगे तो दैट मीन्स वी आर डिस्प्लेसिंग इट, एक्चुअली में वी आर डिस्प्लेसिंग इट एंड वी आर डूइंग सम वर्क ऑन इट। तो यही वर्क, ये जो वर्क हमने इस बॉब पे किया है, यही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेफ हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अब जब मैं ए से लेके बी तक बॉडी को लेकर आ चुकी हूं तो अब ये कितने हाइट पे पहुंच गया है, लेट इट बी h हाइट पर पहुंच गया है, ठीक है। तो जब ये h हाइट पे पहुंच गया दैट मीन्स इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। वो कहां से आई, हमने जो काम किया वही स्टोर हो गई बॉडी के अंदर। सो अब इसके पास बी पोजीशन पर अब इसके पास क्या है, बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी, mgh, नॉट बहुत सारी। तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर हम इसे छोड़ देते हैं, दैट मीन्स हम उस फोर्स को अप्लाई करना बंद कर देते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं, तो ये बी पोजीशन से अपने आप जो है ए पोजीशन तक आ जाएगा। वाई सो, बिकॉज इसके पास mgh पोजीशन की वजह से, h पोजीशन की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। वही पोटेंशियल एनर्जी जब ये ए तक आएगा वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ए तक आने में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो अब ये रुकेगी क्यों, तो अब ये डायरेक्टली सी की तरफ भागेगी। क्यों, क्योंकि अब इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बिल्कुल बराबर है, वही तो कन्वर्ट होकर आई है। अब क्योंकि इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और क्यू के पास इनर्शिया भी है, तो बेसिकली इट विल मूव अहेड, क्योंकि एक फोर्स उसके ऊपर पहले से लग रहा है। सो इट विल मूव अराउंड सी तक जाएगा, अगेन सेम टू सेम h हाइट तक जाएगा, बिकॉज वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है सो इट विल मूव अगेंस्ट एंड टुवर्ड्स ए, अगेन इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अंटिल, जब तक बाहर में इसका जो एनर्जी है वो पूरी तरह इन्वायरमेंट में लॉस नहीं हो जाता, तब तक तो ये ऐसे ही मोशन करते जाएगा। सो देखिए, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड टू बी through a height h, it is given potential energy mgh, where m is the mass of the bob। तो जब हम इसे a से b तक लेकर गए तो हमने इसे एनर्जी दे दी and that energy is stored as the potential energy, that is mgh, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, on releasing the bob at b it moves towards a। जैसे ही हम b पर छोड़ देते हैं वैसे ही वो a की तरफ जाने लगता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब वो बी से ए की तरफ आ रहा था उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। अब देखिए, ऑन रीचिंग ए, जैसे ही वो ए तक पहुंचा सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, The bob therefore cannot stop at A। रुक ही नहीं सकता वो ए पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि उसके पास तो अब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है मतलब मैक्सिमम यू कैन से वेलोसिटी उसके पास बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से वो आगे चलेगा, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इनर्शिया इट ओवरशूट्स द पोजीशन ए एंड रीचेस सी एट द सेम हाइट h अबव ए, ठीक है। सेम हाइट पे पहुंचेगा क्योंकि उतनी ही काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है, तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सेम एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहने के चक्कर में। अब देखिए, द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट ए इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एट सी। सी पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां से आया, जो ए पर उसकी काइनेटिक एनर्जी है वहीं से आया। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, द होल प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द पेंडुलम वाइब्रेट्स अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ए। तो ये प्रोसेस रिपीट होते जाती है एंड ए के अबाउट, ए पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, उसका मीन पोजीशन था, उसके अबाउट पेंडुलम रोटेट करते रहता है। उसके पास एनर्जी नहीं थी ऐसा करने की, बट वी गिव द एनर्जी सो दैट इट डज दैट मच ऑफ ऑसिलेशंस अगेन एंड अगेन, राइट। अब ये तब तक ऑसिलेशंस करते रहेगा जब तक इसका पूरी की पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब हमने जो एनर्जी इसे दी है वो खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशंस बी एंड सी द बॉब इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। बी और सी पोजीशन पे बिल्कुल मोमेंटरीली वो वहां पर रेस्ट पर होगा, राइट।
बिकॉज ऑफ दैट रेस्ट उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब वो रेस्ट पर होगा, मोमेंटेरीली रेस्ट पर होगा, तो उस पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा। दैट मीन्स सारी की सारी एनर्जी तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। इसी वजह से बी एंड सी पर वो मोमेंटरी रेस्ट पर आएगा। ठीक है, therefore its kinetic energy is zero, the entire energy at B and C is potential energy। ठीक है, सारी की सारी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ऑलराइट, तो यहां पर मेन आपको जो है देखना पड़ेगा। ऑलराइट, at A there is no height and hence no potential energy, the entire energy at A is kinetic energy। देखो A पर तो कोई हाइट ही नहीं है, इसलिए इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सो यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो अब आप देखिए, हालांकि इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, कभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, कभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, कभी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये तो चेंज होते रहेंगे, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी वुड बी द कांस्टेंट। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा, दैट वुड बी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए इन योर शॉर्ट फॉर्म और इन योर वर्ड्स। चलिए अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए यहां पर बोला गया है that a stone of mass 0.2 kg is projected vertically upwards with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसका रफ फिगर बना लेते हैं कि भाई एक छोटी सी स्टोन है, ठीक है, और इस स्टोन का जो मास है वो कितना है, 0.2 kg है। ठीक है, इसको हमने ऊपर फेंका है कितनी वेलोसिटी से, 25, है ना, 25। मैं इसे वापस से लिख देती हूँ, 25 मीटर पर सेकेंड से हमने इसे ऊपर फेंका है। सो दैट वुड बी द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट अबव द ग्राउंड, एट व्हाट हाइट विल इट लूज 20% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें ये बताना है, पहली बात तो ये भाई कितने हाइट तक जाएगा, तो ये तो हम इजीली इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमें नेक्स्ट चीज ये बतानी है कि कितने हाइट पे अपनी 20% काइनेटिक एनर्जी को खो चुका होगा। ठीक है, ये हमें थोड़ा नया चीज मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले देखते हैं कि मान लो ये कितनी हाइट तक जाती है, ये बॉडी, ये स्टोन h हाइट तक। ठीक है, तो यूजिंग दी, टाइम तो है नहीं तो t वाली इक्वेशंस कैंसिल, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये जो v स्क्वायर है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, वो तो कितनी है, 0, क्योंकि बॉडी को हमने तो इनिशियल वेलोसिटी 25 से फेंका, ऊपर जाते जाते हो गई वो 0, खत्म हो गई, उसका पूरा जो वेलोसिटी थे वो फिनिश हो गया, वो मोमेंटरीली रेस्ट पर आ गया। तो यहाँ पर जो v है ये कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमने दी थी तो हम लिखेंगे 25 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आना चाहिए प्लस या माइनस, ये तुम पे डिपेंड करेगा, तुम लोग डिसाइड करोगे ना प्लस या माइनस, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि बॉडी ऊपर जा रही है, राइट, ग्रेविटी इसे नीचे खींचना चाहती है, तो द डायरेक्शन इज अपोजिट, ग्रेविटी नीचे खींचना चाहती है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर g की जो साइन है वो क्या होगा, माइनस। सो इट वुड बी -2gh। ठीक है, वी नीड टू फाइंड दी h, और देख लो यहाँ पे g का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है। सो व्हेनेवर जब आपको g का वैल्यू नहीं दिया होता है, यूज 9.8। ठीक है, तो हम लोग भी 9.8 यूज करेंगे। तो हाइट को पता करने के लिए हम लोग बोल देंगे 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। ठीक है, अब तुम फटाफट से इसे कैलकुलेट कर लो, मैं भी फटाफट से कैलकुलेट कर लेती हूँ अपने फोन में।
ठीक है, तुम्हें ये वैल्यू, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया है, तुम्हें ये वैल्यू मिल सकती है 31.9 मीटर। ठीक है, तो तुम्हें ये वैल्यू मिलना चाहिए, 31.9 ही आना चाहिए, बिकॉज हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 31.9, तो इसका मतलब टोटल हाइट जो होनी चाहिए इस बॉडी की वो कितने ऊपर जाएगा, 31.9 मीटर तक जाएगा। अब हमें ये पता करना है कौन सी ऐसी हाइट है जहां पर ये अपनी 20% काइनेटिक एनर्जी को लूज कर चुका होगा। ठीक है, लेट इट बी एक्स, मान लो वो हाइट है x। ठीक है, मान लो यहां से वो ऊपर गया और इस हाइट तक आते आते ये अपनी 20% काइनेटिक एनर्जी को खो चुका होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हम स्टार्टिंग की जो एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी हमने बॉडी को दी, वो एनर्जी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसे मैं KEI से शो कर रही हूं, ये कितनी है, हाफ mv², यानी कि हाफ बॉडी का जो मास है वो कितना है, 0.2 और 25 मीटर से जा रही है तो 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अबाउट 6.25, 62.5, राइट, 62.5 होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा 62.5 जूल्स। तो मतलब इन द स्टार्टिंग हमने इसे कितनी एनर्जी दी, 62.5 जूल्स हमने एनर्जी दी। 20% काइनेटिक एनर्जी खो जानी चाहिए। अब वो एनर्जी कहां जाएगी, क्या वो खो जाएगी इन्वायरमेंट में? नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं mgh, राइट। तो देखिए ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एट द हाइट जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस हाइट पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 20% काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगा, उस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी वुड बी mgh ऑफ दैट हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, 20% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो खोई काइनेटिक एनर्जी है वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट। जितनी जितनी काइनेटिक एनर्जी में कमी जा रही है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रही है, राइट। इसी वजह से हमने पोटेंशियल एनर्जी को 20% काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेट कर दिया, उनको बराबर रख दिया। ठीक है, तो अब देखो mg, अब यहां पे देखो जब वो इस पोजीशन से x पोजीशन तक गई तब तक 20% काइनेटिक एनर्जी जा चुकी थी, तो हाइट वुड बी x 20। ठीक है, तो इट वुड बी 0.2, है ना। 20% परसेंट के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 वुड बी 0.2। अब हम लोग लिख देंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 62.5। ठीक है, अब देखो यहां से तुम इजीली x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो mg को हम नीचे भेज देते हैं, तो x वुड बी हाउ मच, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 62.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी दैट इज 0.2 एंड g दैट इज 9.8। इसको भी तुम लोग बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 0.2 से 0.2 कैंसिल, है ना, तो देखो 62.5 और 9.8, तो ये देखो यही तो वैल्यू है 625, राइट, डिवाइडेड बाय 9.8। ये तो ट्वाइस है, तो मतलब हाफ ऑफ कर दिया। सो अगर हम इसका भी जो है अगर कर देते हैं तो वी वुड बी गेटिंग इट, राइट। तो इट शुड बी 16 समथिंग होना चाहिए इसका वैल्यू, अगर हम उससे कंपेयर करें तो इसका भी हाफ, राइट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं भाई कि इट शुड बी 16.9 मीटर होना चाहिए, जहां तक हम इस कैलकुलेशन की बात करें तो आपका भी हाइट कितना आना चाहिए, 16.9। तो बेसिकली 16.9 हाइट तक जब बॉडी नीचे से 16.9 हाइट तक पहुंचेगी तब तक ये अपनी 20% काइनेटिक एनर्जी को लूज कर चुकी होगी, और तब तक जितनी भी 20% जो उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हुई वो सबकी सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पर जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है ये 16 पॉइंट नहीं होके
जब मैंने कैलकुलेशन किया तो इट विल नॉट बी 16.9, इट इज ऑलमोस्ट 6.4, राइट, 6.4 मीटर तक इसका आना चाहिए। ऑलराइट, तो बेसिकली हम लोगों ने अब ये देखा है कि 6.4 हाइट तक जाते जाते ये अपना 20% काइनेटिक एनर्जी लूज कर चुकी है, और जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी लूज हुआ वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आप इसे करेक्ट कर लो और अच्छे से नोट कर लो। ऑलराइट, तो देखो इस तरीके के आपको घुमाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्टली अगर आपको ये पता होगा कि जब कभी भी कोई भी बॉडी ऊपर जाती है या फॉल करती है, इस दौरान जो भी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, एंड जो भी एनर्जीज होती हैं वो काइनेटिक या पोटेंशियल में चेंज होते रहती हैं। तो यू कैन गेट दैट कब उसकी कितनी एनर्जी लूज हो गई, कब गेन हो गई, कितनी हाइट पर गेन हुई, कितनी हाइट पर लूज हुई। तो ये चीजें आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू नो द फैक्ट दैट द एनर्जी इज गोइंग टू बी कंजर्व, इट वुड बी कांस्टेंट टोटल एनर्जी, एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल चेंज इनटू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहती हैं। दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू नो। और हमें क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को नहीं भूलना है, बिकॉज उसी को यूज करके तो हम लोग थोड़े बहुत रिलेट कर पाए एनर्जीज को, राइट। तो ये चीज हमें नहीं भूलनी है, हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस को याद रखना है और एनर्जी कंजर्वेशन भी हमें याद रखना है। ऑलराइट, सो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट से लेक्चर एंड कर देती हूँ, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पावर। ठीक है, पावर के डिफरेंट फॉर्मुलेज एट डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, और पावर होता क्या है, एंड वी विल ऑल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दी कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर गोइंग टू यूज इनसाइड आवर होम। ठीक है, तो जो बिल आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो बिल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आप कैसे पता कर सकते हो कि आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है और आपको कितना बिल देना चाहिए, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.